آج ہم بات کریں گے ایک بم سافٹ ویئر ریوٹ کے بارے میں۔ زیادہ تر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ریوٹ ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک بم سافٹ ویئر بلڈنگ انفارمیشن ماڈل ہے۔ تو ہم آج اس سافٹ ویئر کے اوپر بگننگ لیول سے ٹیوٹوریل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ جو بھی ہمارے جو ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں آرکیٹیکچر انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، ان سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا جن کو ان سے واقفیت نہیں ہے ان سے واقف کروانا۔ یہ ہمارا آٹو ڈیسک ریوٹ 2024 کا انٹرفیس ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے ماڈلز اور دوسرا ہے فیملیز۔ تو ماڈلز کیا ہوتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہی جو ہم پروجیکٹس بناتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر، وہ سارا ماڈل میں آتا ہے۔ اور جو فیملیز ہیں اس پہ ہم بعد میں اپنے آنے والی کلاسز کے اندر بات کریں گے۔ تو ہم پہلے لیتے ہیں نیو۔ جب ہم نیو لیتے ہیں تو یہ ہمیں کہتا ہے سلیکٹ ٹیمپلیٹ۔ ایک نیو پروجیکٹ کا ہمارے پاس ایک پاپ اپ ونڈو اوپن ہوئی، اس میں وہ کہہ رہے ٹیمپلیٹ فائل۔ ٹیمپلیٹ فائل میں ہمارے پاس کون کون سے آپشن ہیں؟ اسٹرکچر، ریزیڈینشیل، کنسٹرکشن۔ ٹھیک ہے، آپ نن بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس پریس کر کے اسٹرکچر لے سکتے ہیں، آپ سی پریس کر کے کنسٹرکشن لے سکتے ہیں، آپ آر پریس کر کے ریزیڈینشیل لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس میں مزید بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ یہ اب ہم آئے اس جگہ آٹو ڈیسک آر بی پی اینڈ وہ کیا تھا ٹیمپلیٹس۔ ٹیمپلیٹس میں انگلش انٹیریئر یہ ہے، الیکٹریکل ہے، کمرشل ہے، کنسٹرکشن ڈیفالٹ۔ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں، پلمبنگ، مکینیکل، انچ، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ یہ جیسے میں کمرشل لیتا ہوں، یہ آ گیا کمرشل میرے پاس آ گیا، میں نے اوکے کر دیا۔ جب میں نے اوکے کر دیا تو یہ اوپن تو ہو جائے گا۔ اب میں دوبارہ جاتا ہوں، دوبارہ یہاں سے میں دوبارہ لیتا ہوں تو دیکھیے یہاں سے وہ جو کمرشل تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو اس کو پرماننٹ لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو پرماننٹ لانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو کینسل کریں، آپ یہاں جائیں، فائل میں جائیں، آپشن، فائل لوکیشن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اسٹرکچر ہے، ریزیڈینشیل اور کنسٹرکشن ہے۔ تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیا تھا کمرشل۔ تو جب ہم اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے، اوکے کر دیں گے، اب آپ واپس آئیں، یہاں سے جائیں، یہ آپ کے پاس پرماننٹ طور پہ کمرشل آ چکا۔ اب اس کو آپ جیسے مرضی، لیکن ہم ابھی چلتے ہیں ریزیڈینشیل کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ہم ریزیڈینشیل پہ آئے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے ہمارا ریوٹ 2024۔ اب کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اس کے انٹرفیس کو سمجھنا۔ اگر آپ کو اس کا انٹرفیس سمجھ آ گیا تو آپ یقیناً فیوچر میں کام کرتے ہوئے اس پہ بہت ہی ایزی فیل کریں گے۔ سب سے ٹاپ کی بات کریں تو اس بار کو کہتے ہیں کو کوئک ایکسیس ٹول بار، جس کے اندر ہمارے پاس مختلف آپشن ہیں، جیسے کہ ہوم ہے، اوپن ہے، سیو ہے، یہ پرنٹ ہے، پی ڈی ایف ہے، ایکٹیویٹ کنٹرول، میئر بٹوین ٹو ریفرنسز، اور فائل کا نام، سائن ان، کراس، منیمائز، میکسیمائز، جو سارے آپشن اویلیبل ہیں۔ اس کے نیچے جو ہمارے پاس بار ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ریبن ٹیب۔ یہ ہمارا ریبن ٹیب ہوتا ہے، جس کے اندر فائل ہے، آرکیٹیکچر ہے، اسٹرکچر ہے، اسٹیل ہے، پری کاسٹ، سسٹم، انسرٹ، انوٹیٹ، انالائز، میسنگ کا آپشن یوز ہوتا ہے ٹوپو سرفیس یا جو سائٹ ہم بناتے ہیں اس کے لیے، کولیبریٹ، ویو، مینیج، ایڈ، موڈیفائی۔ جب بھی کوئی چیز آپ کریٹ کریں گے اس کے اندر جب بھی کسی بھی قسم کی موڈیفکیشن کریں گے تو آپ موڈیفائی پہ آئیں گے۔ اس کے اندر آپ کے پاس ساری کمانڈ ہوتی ہیں، میرر، کاپی، موو،
स्प्लिट, ट्रिम, ईच एंड एवरीथिंग, इरेज, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब नीचे आते हैं, ये क्या है? ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज और ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर। अब अगर गलती से आपसे ये डिलीट हो जाए तो आप कैसे इसे एक्सेस कर सकते हैं? आपने आना है व्यू में, यूजर इंटरफेस, प्रॉपर्टी, यूजर इंटरफेस, प्रोजेक्ट ब्राउजर। दोबारा आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यकीनन स्टार्ट में लोग पैनिक कर जाते हैं, इतना ज़्यादा एक डिफिकल्ट सा इंटरफेस और उसमें कोई चीज़ डिलीट हो जाए या आगे पीछे हो जाए तो पैनिक कर जाते हैं। अब इसको बोलते हैं हमारा वर्किंग एरिया, इसके अंदर हमने काम करना होता है। ठीक है, इसके बॉटम पे देखिए स्केल होता है, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं और इंशाल्लाह हम अपने आने वाले वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में चेंज करेंगे भी। ये है हमारा डिफ़ॉल्ट लेवल, ये है हमारा विजुअलाइज स्टाइल, जैसे कि वाई फ्रेम, हिडन, शेडेड, कंसिस्टेंट, टेक्सचर या रियलिस्टिक, जो भी आप जिस भी तरीके से या टाइप में आप उसको व्यू करना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो चार ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं ये क्या? ये कैमराज होते हैं। कैमराज, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जैसे ही आप इसके अंदर ड्राइंग बनाते हैं तो ये साथ साथ उसके एलिवेशन और 3D को कैप्चर करते हैं। जो काम कैमरे का होता है, जिस तरीके से कैमरा एक चीज को कैप्चर करता है एज रियल एज पॉसिबल। ठीक है, अब अगर ये कैमराज है, ये इसके ऑप्शन कहाँ से आते हैं? आई मीन के इसको, इसकी सेटिंग या इसको डिलीट करना है, जो भी करना है, ठीक है, ये हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कैमरा, अब आप जिधर चाहें इसको, ये जिस भी एंगल पे आप इसको, मतलब अभी तो फिलहाल हमने कोई ड्राइंग नहीं बनाई, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी एंगल से आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपको शो कर देगा, लेकिन इस केस में ये खाली आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो इसमें खाली ही आना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर की। यह है फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स में पीओ, फुटिंग, बेसमेंट, बेसमेंट इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट फ्लोर इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग, फाउंडेशन, रूफ फ्रेमिंग, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही बन के आ जाता है। आप इसको डिलीट करके अपना भी या इसको रीनेम भी कर सकते हैं, इसके एलिवेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हमने क्या कवर किया। टॉप पे हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे होता है हमारे पास रिबन टैब, जिसमें हमारे पास आर्किटेक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम इंसर्ट, ईच एंड एवरीथिंग होता है। मैसिंग एंड साइट, जो हम अर्थ की जो सरफेस बनाते हैं, अगर आपके पास कंटूर्स या डेटा है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिफिशियली खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम करके कुछ एलिवेशन वगैरह पे आप बना सकते हैं खुद से मॉडिफाई। फिर हमारे पास आता है हमारे लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टीज और राइट साइड पे होता है हमारे प्रोजेक्ट ब्राउजर, और नीचे भी जो टाइम टू टाइम हम यूज करेंगे एलिमेंट्स वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जाते हैं अपने एलिवेशंस पे। एलिवेशन हमारे पास चार होती हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। ईस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए जी, फर्स्ट फ्लोर 0 0 मीन्स के इसको इसने एक रेफरेंस अज्यूम कर लिया कि जितने भी बाकी लेवल होंगे अगर वो माइनस में तो इट्स मीन्स कि वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे है। अगर वो प्लस में, जैसे कि ये 9 फीट, तो ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर है। ऑब्वियसली
अगर प्लस में तो वो ऊपर ही होगा, अगर माइनस में तो वो उससे नीचे हो। अब हम बात करते हैं रूफ। रूफ जो है उसका जो एलिवेशन है वो 18 फीट है। अब उसका एलिवेशन 18 फीट कहाँ से है वो हम चेक कर सकते हैं। वो उसका एलिवेशन है यहाँ से, ठीक है। टोटल फर्स्ट फ्लोर से रूफ के टॉप तक 18 फीट है, लेकिन यहाँ सेकंड फ्लोर से रूफ का जो एलिवेशन है वो है 9। इसको चेंज कर लो, आपको नहीं पसंद 10 कर लो, ठीक है। दूसरा, आप अगर मजीद लेवल्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, या आप ये डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। हम फाउंडेशन को रहने देते हैं, रूफ को भी रहने देते हैं, सेकंड फ्लोर, और ये बाकी सब हम खत्म कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर चला गया, फाउंडेशन रूफ प्लेन नीचे आ गया। रूफ ऊपर होना चाहिए था, फर्स्ट नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? हम इसको एडजस्ट ऐसे कर सकते हैं, डबल क्लिक, 01, सॉरी 0 means to say कि सिंपल नंबरिंग कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू रीनेम द करस्पॉन्डिंग व्यूज, मतलब कि यहाँ पे चेंज, अगर आप यस करेंगे तो वो यहाँ पे भी रीनेम कर देगा, और यहाँ पे भी फाउंडेशन को 01 कह देगा, ठीक है। तो यस, ये देखते हैं यहाँ पे। अब 02 फिर पूछेगा यस, ये देखिए 01 ऊपर, 02 नीचे, 03 यस, ओके। अब हम आते हैं इसकी तरफ। अब हम देखते हैं इसकी क्या है, इसकी जो डेप्थ है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, रेविट में आपने अगर फिट में कोई चीज या कोई डायमेंशन पुट करनी है तो जरूरी नहीं कि आप ये साइन डाल दें। आप 2 लिख दें और इंटर कर दें, वो 2 फीट ही समझेगा। लेकिन अगर आप 2 इंच पुट करना चाहते हैं तो आपने 0 स्पेस 2 इंटर, वो 2 इंच कंसीडर कर लेगा, ठीक है। लेकिन हम अब 2 फीट पूरा पुट करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि हमने सिर्फ इन्हीं लेवल्स पे काम करना हो। जैसे हमने डिलीट किया वैसे हमें ऐड भी करने चाहिए, या ऐड करने का भी पता होना चाहिए। तो वो हम करेंगे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में हम जाएंगे लेवल। ये देखिए इधर ये जो आपको ये डॉटेड लाइंस जो हो रही है इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। ये आपको एक किस्म की रेफरेंस लाइन होती है जो आपके हेल्प के लिए होती है। अभी ये देखें, ये मैं जैसे मूव डाउन कर रहा हूँ तो ये डायमेंशन चेंज हो रही है, लेकिन वी डोंट केयर, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमें साइड पे है, इधर भी हमने उसने दे दिया। अब हम देखना चाहते हैं, ये 10 फीट है और ये 11 फीट है, इसको भी हम 10 कह देते हैं, ओके। ये कितनी है, ये कितनी है, ये बहुत कम है, इसको भी 10 कर देते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि रिविट का इंटरफेस क्या होता है। रिविट के अंदर हम इनिशियल जो करते हैं काम, लेवल वगैरह क्रिएट करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पर्सपेक्टिव, वो ये भी है कि काम करने से पहले आप इसके यूनिट सेट कर लें। मैंने तो फिट के अंदर काम करना था इसलिए मैंने सेटिंग नहीं की, लेकिन अगर आप मीटर में काम करना चाहते हैं, मिलीमीटर में,
या किसी और यूनिट में, तो आपने यू एन प्रेस करना है। जब आप यू एन प्रेस करेंगे आपके पास ये शो हो जाएगा। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, HVAC, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एंगल डिग्री में लेने या ग्रेडियंट, रेडियन, जो भी आपने पुट करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने ये देखें, स्क्वायर फीट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंच, जो भी आपने रखना है। और अब ये देखिए यूनिट सैंपल, यूनिट सैंपल हम ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं। ओके, ये आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद रही होगी। एंड फ्यूचर में भी हम इंशाल्लाह रिविट के ऊपर एडवांस किस्म की मॉडलिंग करेंगे, क्योंकि आजकल जो मार्केट में जो ट्रेंड है वो अब कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से आहिस्ता आहिस्ता हटता हुआ जा रहा है। और सारा मामला अब जो शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है बिम मॉडलिंग के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम बिम के ऊपर मज़ीद भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है आप लोग इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर पाएंगे।